أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے. یہ ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے. اسے اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے. بس اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر 16 کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام ہو. صلی اللہ علی محمد وسلم. قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، قرآن مجید کی چند آیتیں کہ میں نے تلاوت کی ہے اور یہ آیتیں ہماری سلسلہ وار درس کی اگلی کڑیاں ہیں. آیت نمبر 76 سے لے کر آیت نمبر 78 تک، یعنی کل 3 آیتیں جو میں نے تلاوت کی ہے. یہ آیتیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 1 رکو نمبر 9 کی آیتیں ہیں. پچھلے درس میں ہم نے اس کی آیت نمبر 75 کا لفظی ترجمہ، اس کی تشریح اور اس کی تفسیر سن چکے ہیں. جب اس سے پہلے کہ آگے کی آیتوں کی طرف بڑھیں، ایک مرتبہ پھر آیت نمبر 75 کا ایک مختصر سا اعادہ اور ایک خلاصہ دیکھتے ہوئے آگے چلے تاکہ آگے کی آیتیں بھی سمجھنے میں آسانی ہو. کیونکہ آیت نمبر 75 یہ آیت نمبر 76 سے تعلق رکھتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے آیت نمبر 75 کے اندر، افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، جو آپ سنوں کے زمانے میں ایمان والے صحابہ تھے، ان سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، کیا تمہاری یہ خواہش ہے کہ یہ یہودی اور عیسائی بھی، یہ بنو اسرائیل یا یہ یہودی بھی تمہاری طرح ایمان لے آئے، تمہاری طرح یہ بھی اسلام قبول کر لے؟ کیا تمہاری یہ خواہش ہے؟ جبکہ یہ تمہاری خواہش پوری نہیں ہونے والی ہے. تمہاری یہ خواہش کہ یہودی لوگ بھی اسلام قبول کریں، جو آپ کے زمانے کے یہودی تھے، یہ تمہاری خواہش پوری نہیں ہونے والی. یعنی اکثر و بیشتر تمہاری یہ خواہش ناکام ہو جائے گی، نامراد ہوگی. کیوں؟ وقد کان فریق منہم، کیونکہ ان میں کا ایک فریق، ایک گروہ تو ایسا بھی ہو گزرا ہے، ایسا بھی ہے، یسمعون کلام اللہ، جو اللہ کے کلام کو جانتا ہے، اللہ کے کلام کو سنتا ہے، پڑھتا ہے، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، اور اس کلام کو جاننے کے باوجود، اس کلام کو سمجھنے کے باوجود اس میں
तहरीफ करता है, उसमें रद्द बदल करता है, मिन बअद मा अक़लूहु, यहाँ तक कि उसको वो समझ चुका है, उसके हलाल को हलाल समझा हुआ है, उसके हराम को हराम जानता है, उसके सारे मसाइल को, उसके सारे हक को पहचानता है, फिर भी जो हलाल है उसको हराम कर देता है, जो हराम है उसको हलाल कर देता है। और जहाँ कहीं भी मेरे नबी के ताल्लुक से बचाने चाहिए वो हक है, उनको हक बात जानते हुए भी उनको छुपाता है और कहता है कि तुम्हारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई तज़किरा हमारी किताबों में नहीं मिलता, बात को ही बदल देते। वहुम यअलमून, जबकि इतना ही नहीं कि उन्होंने अल्लाह के कलाम को सुना, समझा, पढ़ा, बल्कि साथ ही साथ उसको हक भी समझा है उन्होंने। वहुम यअलमून, यानी उस हक को वो जानते और पहचानते हैं, फिर भी उसके अंदर तब्दीली। फिर बकरा की आयत नंबर 75 से अल्लाह तबारक तआला का मजमून और अंदाज दोनों बदलता है। यानी वो मजमून जो अल्लाह तबारक तआला बनो इसराइल के ताल्लुक से अल्लाह ने शुरुआत किया था, गालिबन रुकन नंबर 2 या 3 से, मुनाफिकीन का तज़किरा करते हुए बनो इसराइल पर अल्लाह तबारक तआला आता है, बनो इसराइल के हालात और वाक़यात और किस किस तरह अल्लाह की इनामत और एहसानात उस कौम पर हुई और किस किस तरह उन्होंने हर बार अल्लाह के एहसानात की, अल्लाह की इनामत की नाशुक्री की, और फिर अल्लाह तबारक तआला ने उसकी बदौलत उन पर किस किस तरह अजाबात किए, किस किस तरह अल्लाह ने पकड़ की, उन सब का तज़किरा करने के बाद अब अल्लाह तबारक तआला आप के जमाने के जो यहूदी थे उनके ताल्लुक से अब मुसलमानों के आगे बयान करता है। उनके ताल्लुक से मुसलमानों के आगे अब उनके पोल, उनके वो राज और रमूज जिसको छुपाते थे, अब मुसलमानों के आगे अल्लाह ताला बयान करता है, ये कहकर कि देखो इनके बाप दादा, ये बनो इसराइल की ये हिस्ट्री, ये तारीख तो ऐसी है। अब ये मत समझो कि तुम्हारे जमाने के यहूदी और ईसाई बड़े पाक साफ होंगे, ऐसा नहीं है, उनमें भी ऐसी ही गलतियां हैं, क्योंकि इनके पास भी जो तौरात है, जो इंजील है, इसमें मेरे नबी का तज़किरा मौजूद है, फिर भी ये उसको छुपाते हैं, जबकि ये जानते हैं कि ये हक है, जबकि वो जानते हैं कि ये नबी आखिरी है, इनके बाद कोई नबी आने वाला नहीं। नामों के साथ, सिफात के साथ तज़किरा उनकी किताबों में मिलता था। तो अल्लाह ने कहा कि तुम इनके ईमान लाने की उम्मीद छोड़ दो और ये ख्वाहिश मत करो कि ये यहूदी इस्लाम कबूल करेंगे। इसके बाद आयत नंबर 76 के अंदर आयत नंबर 76 के अंदर अल्लाह ताला कहता है, वइज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना, यानी इनकी बेगैरती और बेशर्मी का तो ये हाल है, ये अंजाम है कि ये जब ईमान वालों के पास आते हैं और इनसे मुलाकात करते हैं, जब इनसे मिलते हैं तो कहते हैं क़ालू आमन्ना, अरे हम तो ईमान ले आए, हम तो मुसलमान हो गए। यानी ठट्टा और मजाक भी ईमान वालों के साथ करते थे, ईमान वालों को धोखे में रखते थे, और इनके बाद जब आकर मिलते तो कहते हम तो मुसलमान हैं, हम तो ईमान वाले हैं, हमारे ताल्लुक से किसी गलत फहमी में मुब्तला न होना, हम तो मुसलमान हैं, हम तो ईमान वाले हैं, ये दावा भी करते थे। इस दावे और धोखे में मुसलमान सहाबा जो कि सीधे साधे सादा लौह थे, वो भी उनकी इस कितनी चुपड़ी बातों में आ जाते और उन्हें ईमान वाले समझ लेते थे। आगे टुकड़े में अल्लाह ताला कहता है, वइज़ा क़ाला बअज़ुहुम इला बअज़िन, और जब ये वहां से निकलते हैं, अलग हो जाते हैं, तन्हाई इख्तियार कर लेते हैं और अपने ही बाज में से बाज से मुलाकात करते हैं, अपने ही में से किसी से मुलाकात जब इनकी होती है, यहाँ पे इशारा है उन यहूदियों की तरफ जो आप सल्लम के पास आते थे, आप सल्लम के सहाबा से मजाक ठट्ठा और इस्लाम लाने का दावा भी करते, जब वहां से निकलकर अपने सरदारों के पास जाते, अपने उलमा और मशाइख के पास जाते और उनके आगे कहते हैं कि देखो हमने इसे इस तरह किया, हमने मुसलमानों के साथ ऐसा ऐसा मामला किया, और जब उन्होंने हमसे पूछा कि क्या तुम्हारी किताबों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा मिलता है, तो हमने मजाक में कहा कि हाँ हाँ मिलता तो है,
क्योंकि मुसलमान होने का दावा कर रहे थे ना, मुसलमान होने का दावा मुसलमानों के आगे किया। अब मुसलमानों ने पूछा कि क्या तुम्हारी किताबों में हमारे नबी उम्मी का तज़किरा मौजूद है? तो कहा है। और जब अपने उलमा और मशाइख के पास, अपने आलिमों के पास, अपने सरदारों के पास आकर कहते कि अरे हम तो उनके साथ मजाक कर रहे थे, हम कहाँ मुसलमान हैं, हम तो दिन में उनके साथ ईमान ले आते हैं और रात में हम कुफ्र इख्तियार करते हैं। हम रात में इस्लाम को छोड़ देते हैं, सुबह इस्लाम कबूल करते हैं और रात में इस्लाम छोड़ देते हैं। और जब आकर कहते अपने उलमा और मशाइख और अपने सरदारों के पास कि हम तो मजाक में कह रहे थे कि हाँ तुम्हारे नबी का तज़किरा हमारी किताबों में मौजूद है, तो इस पर उनके उलमा और मशाइख क्या कहते थे? कहते थे औलू, कहा उन्होंने, यानी उनके उलमा और मशाइख जो हक बात को जानते थे, जो तौरात इंजील में आप का तज़किरा पाते थे, वो कहते थे अतुहद्दिसूनहुम बिमा फतह अल्लाहु अलैकुम, अरे क्या तुम मुसलमानों को वो बातें बयान करते हो जो सिर्फ अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर खोला है? बिमा फतह अल्लाह, यानी वो बातें जो सिर्फ अल्लाह ने तुम पर नाजिल की है, क्या तुम वो बातें मुसलमानों को बयान करते हो? अब तो हदीसूनहुम बिमा फतह अल्लाहु अलैकुम, वो खास बातें जो तौरात और इंजील में है, इसको अल्लाह ने सिर्फ तुम्हारे लिए नाजिल किया, क्या तुम वो बातें मुसलमानों को बयान करते हो? ऐसा मत करो। अगर तुम ऐसा करोगे, तौरात में जो बातें हैं अगर तुम मुसलमानों के आगे बयान करोगे और तौरात और इंजील में जहाँ कहीं भी नबी के वसल्लम का तज़किरा मौजूद है, अगर तुम उसका इकरार करोगे तो क्या होगा? युहाज्जूकुम बिही इंदा रब्बिकुम, तो ये तुम्हारा मामला, ये तुम्हारा गवाही देना, ये तुम्हारा मुसलमानों के आगे इकरार करना कि हाँ हमारे तौरात और इंजील में, हमारे बाइबल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा है, ये हुज्जत कायम कर देगा, ये दलील बना देगा इंना रब्बिकुम, तुम्हारे रब के नजदीक। यानी हाँ ये यहूदी और ईसाई इनकी किताब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा था, इसको ये जानते थे फिर भी छुपाते थे। ये मुसलमान कल कयामत में तुम्हारे खिलाफ फिर गवाही देंगे और अल्लाह भी कहेगा कि देखो दुनिया में तो तुम कहते थे कि तुम्हारी किताबों में मेरे नबी का तज़किरा है और तुमने इकरार भी किया, फिर भी तुमने मेरे नबी के ताल्लुक से क्यों बयान नहीं किया, उस पर ईमान क्यों नहीं ले आए, क्यों उसके साथ तुमने कुफ्र इख्तियार किया? अल्लाह के आगे तुम्हारी पकड़ होगी। देखिए कितनी बदमाश कौम है। उनकी किताबों में प्यारा का सलम का तज़किरा और बहुत सारी सच्चाइयाँ और हक्कानियत उनकी किताबों में मौजूद थी, और कभी कभी मजाक में या बातों मुसलमानों के आगे मुसलमान होने का ढोंग और नाटक करते उसको बयान भी कर देते थे। और जब अपने सरदारों के पास आकर कहते थे हमने तो ऐसा कह दिया था, तो उनके उलमा मशाइख डांटते भी थे उन्हें और कहते थे अरे क्या तुम ऐसी बातें जो सिर्फ अल्लाह ने तुम्हारे लिए नाजिल किया है वो तुम दूसरों के आगे बयान करते हो? इससे तो अल्लाह के आगे हुज्जत कायम हो जाएगी, अल्लाह के आगे दलील और प्रूफ साबित हो जाएगा कि यकीनन तुम हक जानते थे फिर भी छुपा रहे थे। अफला ताक़िलून, क्या तुम समझते नहीं हो कि इतनी बड़ी बात मुसलमानों के आगे बयान कर दे रहे हो कि उनके नबी का तज़किरा किताब मौजूद है, इकरार कर रहे हो, तो क्या ये अल्लाह के आगे तुम्हारे हुज्जत कायम नहीं करेगा? अफला ताक़िलून, क्या तुम समझते नहीं हो? ये थी आयत नंबर 67, जिसमें उन लोगों का तज़किरा है जो आलिम थे, जो मशाइखों में से थे, जो बड़े सरदारों में से थे, जिनके पास इल्म था, जिनके पास दीन का, उनकी शरीयत का इल्म था, मसाइल को जानते थे, हलाल क्या है उसको जानते थे, हराम क्या है उसको जानते थे। अब आयत नंबर 77 के अंदर अल्लाह ताला कहता है, नहीं आयत नंबर 77 के अंदर ही अल्लाह ताला उनकी तरफ से एक और बात कहता है, अवला यअलमून अन्नल्लाह यअलमु मा युसिरून व मा युअलिनून। अल्लाह ताला कहता है क्या ये लोग जिस हक को छुपा रहे हैं, जिस सच्चाई को छुपा रहे हैं, जिसको मैंने ही नाज़िल किया इनकी तरफ, अवला यअलमून, क्या ये लोग नहीं जानते, अन्नल्लाह यअलमु मा युसिरून व मा युअलिनून, कि बेशक अल्लाह जानता है जो कुछ ये छुपा रहे हैं और जो कुछ ये जाहिर करते हैं। जो कुछ ये छुपाते हैं, जो कुछ ये जाहिर करते हैं, अल्लाह उसको इनसे बेहतर जानता है। वो अल्लाह जो तुम पर वही के जरिए से
तुम्हारी तरफ तौरात को नाजिल कर सकता है, वही अल्लाह मुसलमानों की तरफ कुरान को भी नाजिल कर रहा है। तुम्हारी राज और नमूज को यहाँ पर अल्लाह ताला खोल सकता है वही के जरिए से। अवला यअलमून अन्नल्लाह यअलमु मा युसिर्रून व मा युअलिनून, यानी तुम मुसलमानों के आगे तो बोल देते हो, फिर अपने उलमा मशाइख के पास आकर कहते हो हम तो उनके साथ मजाक कर रहे थे। तो उनके उलमा मशाइख कहते, उनके सरदार कहते कि वो बातें जो सिर्फ तुम्हारे पास है उनको क्यों खोल रहे हो, इसको बड़ा राज समझते थे। अल्लाह कहता है कि जहां तक तुम ये समझते हो कि हक है और सिर्फ अल्लाह ने ये हक्कानी तुम्हें दी है, तौरात तुम्हें दिया है, जब तुम अल्लाह को मानते हो तो क्या अल्लाह की सिफ्त को भूल गए कि वही तो अल्लाह है जो तुम्हारी छुपी हुई चीज को भी जानता है और तुम्हारी जाहिर चीज को भी जानता है। अन्नल्लाह यअलमु मा युसिर्रून, सिर्रून कहते हैं खुफिया और हल्की चीज को, छुपी हुई चीज को। व मा युअलिनून, ऐलान से बना वाला से, व मा युअलिनून अरे जो कुछ तुम ऐलान करते हो, जाहिर करके करते हो, उसको भी अल्लाह जानता है। जो अल्लाह छुपे हुए और जाहिर को जानता हो, क्या तुम्हारी किताबों के अंदर की बातों को नहीं जानता? वो अल्लाह मुसलमानों को आगाह करता रहता है। यही वजह है कि आप वसल्लम कहते हैं कि मेरे पास जितने लोग आते हैं मैं एक एक का नाम के साथ जानता हूं कि कौन मुनाफिक और कौन नहीं है। मैं चाहूं तो एक एक का कत्ल भी कर दूं, पर इसलिए मुनाफिकीन का कत्ल नहीं करता हूं कि 12 उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे जलील कद्र सहाबा और दूसरे सहाबा भी कहते अल्लाह के रसूल ये तो मुनाफिक है कि आपके शान में गुस्ताखी करता है, हमें इजाजत दे दो तो मैं हम इनकी गर्दन उड़ा दे। कहते हाँ मैं जानता हूँ कि फला 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 मुनाफिक है, अल्लाह ने इनके नाम के साथ मुझ पर वही किए। देखिए और करने की बात है, पूरे कुरान में कहीं ऐसी आयत नहीं इसमें मुनाफिकीन का नाम हो, मगर आप कहते हैं अल्लाह ने इनके नाम के साथ मुझ पर वही किए कि फला मुनाफिक है, फला काफिर है, फिर भी मैं इनका कत्ल इसलिए नहीं करता हूँ, कुर्बान जाइए रहमतुल लिल आलमीन पर। वो कहते इसलिए मैं इनका कत्ल नहीं करता हूँ, तो कहे लोग ये न कहने लगे कि मोहम्मद तो अपने ही साथियों का कत्ल करता है, क्योंकि वो मुनाफिक बराए नाम मुसलमान होगा आप के साथ रहते थे। अगर वो मुनाफिकीन का जानते मुझसे अगर कत्ल कर देते तो लोग कहते अरे वो तो मुसलमान था। लोगों को थोड़ी मालूम कि वो मुनाफिक है या मुसलमान है, लोगों को ये फर्क समझ में नहीं आता था। जो बदू किस्म के लोग थे जो गांव खेड़े से आ जाते थे, इस्लाम कबूल कर लेते थे, उन्हें ये फर्क नहीं समझ में नहीं आता था। और उस वक्त जौक दर जौक, कबीला दर कबीला, गांव दर गांव इस्लाम कबूल कर रहे थे। अगर इस दरमियान जो मुनाफिक अपने आप को मुसलमान होने का दावा करते, अगर इन्हें कत्ल कर दिया जाता तो आप वसल्लम क्या कहते हैं, लोग शक में मुब्तला हो जाएंगे कि ये तो नबी ऐसा है कि जो इस्लाम कबूल कर रहे हैं उनका ही कत्ल कर रहा है। इसलिए आप सल्लम जानते मुझसे भी उनके साथ दरगुजर का मामला करते थे, उनके साथ माफी का मामला। वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह वो तो रहमतुल लिल आलमीन है, सारे जहानों को रहमत बनाकर भेजे गए। गलती जानते बुझते ये भी कहते थे ठीक है माफ कर दिया, मुनाफिकीन को माफ कर दिया करते। तो अल्लाह ताला कहता है कि वो अल्लाह जो हर छुपे और जाहिर को जानता है। क्या तुम लोग भूल गए कि अल्लाह ये सब कुछ जानता है? अवला यअलमून, क्या तुम लोग नहीं जानते कि अल्लाह तो हर छुपे और जाहिर को जानता है? उसके बाद आयत नंबर 78 के अंदर अल्लाह ताला कहता है वमिनहुम उम्मियून ला यअलमूनल किताब, यानी आयत नंबर 76 और 77 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे यहूदियों का तस्वीरा किया जो इल्म रखते थे, जो दीन इस्लाम का और उनकी शरीयत का इल्म था, हलाल क्या है वो भी मालूम था, हराम क्या है वो भी मालूम था, और उनकी किताबों में तौरात और इंजील में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा कहाँ पर मौजूद है, किस तरीके से मौजूद है, वो भी उन्हें मालूम था। ऐसे लोगों का अल्लाह तज़किरा किया। अब आयत नंबर 78 के अंदर अल्लाह ऐसे लोगों का तज़किरा कर रहा जो अंगूठा छाप है, जो अनपढ़ है, जो किताब का इल्म नहीं रखते। अल्लाह ताला कहता है वमिनहुम उम्मियून, और इन्हीं में से यानी अल्लाह ने ऊपर क्या कहा वक़ान फरीक़ुम मिनहुम, यानी इनमें का एक गुरुह ऐसा है यस्माऊन कलाम अल्लाह, जो अल्लाह के कलाम को सुनता है, जो अल्लाह के कलाम को समझता है, जो अल्लाह के कलाम को जानता है ना, एक गुरुह। और उसका एक और मुतजाद गुरुह भी ऐसा था मिनहुम उम्मीयून, कि इनमें का एक गुरुह ऐसा भी है जो उम्मी है। उम्मी की जमा
उम्मीयून यानी अनपढ़, यानी जो अच्छी तरह लिखना पढ़ना नहीं जानते उन्हें अनपढ़ कहते हैं। अनपढ़ का मतलब ये नहीं कि जो जानते ही नहीं कुछ भी, उनको भी अनपढ़ कहते हैं, मगर अनपढ़ उनमें उसको भी कहते हैं जो अच्छी तरह लिखना पढ़ना नहीं जानते। तो मिनहुम उम्मीयून, इन्हीं यहूदियों में एक गिरोह ऐसा भी है जो उम्मी है, जो अनपढ़ है। ला यअलमून किताब, कि ये किताब को नहीं जानते, मतलब तौरात में क्या अहकामात है जाहिरी माने के अलावा उन्हें ज्यादा इल्म नहीं है किताब के ताल्लुक से। इल्ला अमानिया, मगर किताब का इल्म नहीं है, मगर इल्ला अमानिया, ख्वाहिशात है, तमन्नाएं उनके पास है। वह इनहुम इल्ला यज़ुन्नून, और वो नहीं है मगर गुमान पर। वह इनहुम इल्ला यज़ुन्नून, वो नहीं है मगर सिर्फ उनके पास गुमान है, अटकल पच्चू है। अब देखिए अल्लाह ताला यहूदियों के उस गुरोह का तज़किरा कर रहा है जो अनपढ़ है, जो अंगूठा छाप है, जो बिल्कुल ही जानते नहीं है, पढ़ना लिखना नहीं जानते। उनके ताल्लुक से भी अल्लाह ने कुछ ऐसी सिफात बयान किया और कहा ला यअलमून किताब, यानी किताब के जाहिरी माने के अलावा इन्हें और कुछ नहीं मालूम। यानी मोटा मोटा मालूम है कि तौरात के अंदर फला फला हुक्म है, बस कहाँ है, कैसे है, किस वजह से है, इसका पस मंजर और बैकग्राउंड उन्हें नहीं मालूम था। अब इसका नुकसान अल्लाह ताला ये बता रहा है इल्ला अमानिया, यानी किताब का इल्म न होने की वजह से उनके अंदर अमानियत आ गई, यानी कि सिर्फ ख्वाहिशात, तमन्नाएं। अमानियत, अमानियत बना हुआ लफ्ज है तमन्ना से, तमन्ना में ख्वाहिश करना। इनके अंदर सिर्फ ख्वाहिशात है, दीन के ताल्लुक से क्या है तो ख्वाहिशात है। वो इनहुम, और वो सिर्फ किस चीज पर है, इल्ला यज़ुन्नून, ज़न और गुमान पर। एक तो सबसे पहला नुक्ता इस आयत से मालूम हुआ कि यहूदियों में भी जो किताब को नहीं जानते थे, किताब में क्या है उसको पहचानते नहीं थे सिवाय जाहिरी माने के, जाहिरी मफहूम के, तो उनके अंदर दो बीमारी आई। एक अमानी यानी तमन्नाएं, तमन्ना से मुराद अरे कुछ करो न करो जन्नत में जाना ही है। जैसा आज हर मुसलमान दावा करता अरे हम तो मुसलमान हैं, हम तो जन्नत में जरूर जाएंगे, कोई जाए या न जाए हम तो, क्या है, सिर्फ तमन्ना है, ख्वाहिश है। उसके लिए जिस तरह जद्दोजहद जिसको जो करना चाहिए वो कभी नहीं करता। तो वैसा उनके उम्मियों में, उनपे अनपढ़ों में भी ये ख्वाहिश थी, ख्वाहिशात बहुत ज्यादा थी कामयाब होने की, कामरान होने की। और वो इनहुम इल्ला यज़ुन्नून, दूसरी बीमारी क्या थी, सिर्फ ज़न और गुमान और अटकल पच्चू उनके पास था। क्या था, ज़न और गुमान और अटकल पच्चू, यानी अरे हम तो अगर जहन्नम में गए भी, पहली बात तो कहते थे कि हम यहूदी तो कभी जहन्नम में जाने वाले ही नहीं, पहले दावा था उनका यहूदियों का। आगे की आयतों में आएगी वो बात। कहते थे कि हमें तो जहन्नम की आग छुएगी तक नहीं। क्या कहते थे, ये गुमान था उनका। अल्लाह ने इस गुमान को अटकल पच्चू का, अटकल पच्चू यानी अंदाजे, अंधेरे में तीर मारना। तो ऐसे अटकल पच्चू उनके अंदर थे कि हमें तो जहन्नम की आग छुएगी तक नहीं। अगर चलो मान लिया जाए कि जहन्नम में गए भी तो सिर्फ चंद दिनों के लिए, कुछ अय्याम मौजूदा, गिनती के चंद दिन लेंगे, बस हम जाएंगे और आएंगे फिर जन्नत में। ये थी उनके अंदर बुराई। सबसे पहला नुक्ता जो समझने का शायद से ये है कि जो किताब को नहीं जानते थे उनके अंदर दो बीमारियों का अल्लाह तज़किरा किया, ख्वाहिशात और अटकल पच्चू। दीन के ताल्लुक से ये दो चीजों में मुब्तला हो गए, दो चीजों में। एक, सिर्फ ख्वाहिशात उनके अंदर रह गई, असल मसाइल नहीं मालूम, नमाज पढ़ने का क्या फायदा नहीं मालूम, सही अकीदे का क्या फायदा नहीं मालूम, शिर्क से बचने का क्या फायदा नहीं मालूम, रोजा रखने का क्या फायदा नहीं मालूम, मगर ये मालूम है ये करो या न करो, साल में एक बार गौर से पाक के नाम से 11वीं कर दो, जन्नत जरूर मिलेगी, ये जरूर मालूम है। ऐसे ही ख्वाहिशात इनके अंदर मौजूद थी। और दूसरा यज़ुन्नून, यानी ज़न्न की बुनियाद पर, अटकल पच्चू और गलत लॉजिक की बुनियाद पर उनका सारा दीन डिपेंड था। गलत लॉजिक बोले तो कौवे ने आकर घर के ऊपर काय काय किया,
फौरन दिमाग लगा, आज मेहमान आने वाले। उल्लू ने घर के सामने से कुकू की आवाज निकाला, अब इनके घर में तो मौत होने वाली है। ये क्या है? अटकल पच्चू, गुमान, खाली सिर्फ गुमानात के ऊपर, ख्यालात के ऊपर उनका दीन था, बीमारी मालूम है। तो इससे बात क्या मालूम है कि आज भी अगर कोई अल्लाह की किताब से मुंह मोड़ेगा, कुरान मजीद से मुंह मोड़ेगा, इसको समझेगा नहीं, इसको पढ़ेगा नहीं, इसको अपनी जिंदगी में नहीं लाएगा और उम्मी का उम्मी रहेगा मरने तक, कब्र में पैर लटकाने तक और अंगूठा छाप का अंगूठा छाप रहेगा, अनपढ़ का अनपढ़ रहेगा, तो उसके अंदर ये दो बीमारी आएंगी। कहने कुछ भी अमल नहीं रहेगा, कोई ईमान भी नहीं रहेगा, तो भी ख्वाहिशात रहेंगे। इसे अल्लाह माफ कर देगा। अल्लाह तो बड़ा बख्शने वाला है, अल्लाह तो गफूर है, अल्लाह तो गफ्फार है। ये कह कर वो जिंदगी गुजार देगा और मर जाएगा। इसी तरह अटकल बच्चों और लॉजिक रहेगी, ऐसी लॉजिक, ऐसी मंतिक जो दुरुस्त नहीं, सिर्फ गुमान ही गुमान होगा। अरे हम तो इतने अच्छे हैं, हमने तो फला काम भी किया है, हमने तो फला नेकी भी की है। क्या पता अल्लाह को कौन सी नेकी पसंद है, अल्लाह जन्नत में डाल दे। आदमी मुसफर यही बोलता है, नमाज पास तो कभी भी नहीं पढ़ेगा, पढ़ा भी तो जब दिन में आएगा तब पढ़ेगा। जुमा पढ़ा नहीं पढ़ा, मगर बराबर जब अल्लाह की जात से उम्मीद लगाएगा तो कहेगा क्या पता अल्लाह को कौन सी अदा पसंद आ जाए और हमें जन्नत में डाल दे। ये बीमारी आती है अल्लाह की किताब से दूर होने से। पहली बात, पहली नसीहत इस आयत से मालूम है। दूसरी बात, इन्हें इन अमानियत में और वन में, यानी ख्वाहिशात में, बेजा ख्वाहिशात और अटकल पत्ती में किसने फंसाया? तो तफसीरों में आता है इनके उलमाओं में। जब इनके अवाम इनके पास आती थी तो पहली बात कहते थे कि पढ़ो ही मत, तौरात इंजील इसके मसाइल को पढ़ो मत, समझो मत। और जब ये कहते फिर हम क्या करना, हमारे पीछे चलो, हम तुम्हें कब्र में भी आसानी कर देंगे, हम तुम्हें आखिरत में भी आसानी कर देंगे। और इन्हें ऐसे ऐसे गुमान, ऐसे ऐसे ख्यालात और ऐसे ऐसे अकीदे इन्हें देते थे और कहते थे अरे यहूदी की जमात, बनो इस्राइल की जमात, ये ग्रोह ऐसा है कि ये इसमें तो सारे अंबिया हो गुजरे, अंबिया जो कि अल्लाह की सबसे पहली मखलूक, कि अल्लाह ताला ऐसी अंबिया की के ग्रोह को जहन्नम में डालेगा। तो अवाम कहते यही तो बिल्कुल नहीं, फिर हम जहन्नम में जा ही नहीं सकते, तो तुम क्यों परेशान होते हो? हम जैसा कहते हो वैसा करो, हम जो समझा है उसको समझ जाओ, जिससे हम रोक दे उससे रुक जाओ। तो वो अवाम भी बिल्कुल बाई की तरह उनके पीछे हाँ में हाँ लगाती और उनके कहने पर ही अमल करती। इन आयतों से उम्मत मोहम्मदिया के लिए क्या नसीहत मिलता है? उम्मत मोहम्मदिया के लिए नसीहत मिलता है कि उम्मत मोहम्मदिया के भी वो लोग जो दीन का इल्म रखते हैं, वो लोग जो कलामुल्लाह जानते हैं, वो लोग जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को, सुन्नतों को जानते हैं, वो भी आज बनो इस्राइल के उलमा की रविश पर चल रहे हैं कि हमेशा छुपाते रहते हैं, हमेशा छुपाते रहते हैं, कभी जाहिर नहीं करते, कभी खोल कर नहीं रखते। क्यों? जितना ज्यादा अवाम को नॉलेज दिया जाएगा उतना ज्यादा अवाम होशियार होगी, चालाक होगी, जगह जगह पर पूछेगी मौलाना आप तो ये बात ऐसी तरह कह रहे हैं पर कुरान की आयत तो ऐसी है, मौलाना आप तो एक बात ऐसी बयान कर रहे हैं मगर एक हदीस तो ऐसी है। फौरन लोग हमें टोकना शुरू कर देंगे और हमारा धंधा पानी बंद हो जाएगा, हमारे पेट पर लात पड़ जाएगी और लोग हमारी इज्जत नहीं करेंगे और हमारे पेट में मुंडी डालना बंद कर देंगे। आज भी उम्मत मोहम्मदिया में ये बीमारी आई कि जानते बूझते भी कुरान को पेश नहीं करते। अल्लाह कसम खा के कहता हूँ, बताइए कितनी मस्जिदें हैं पूरी दुनिया में, बिल्कुल औरंगाबाद में, जहाँ पर अल्लाह की किताब को खोल कर कहा जाए कि ये किताब है, इसमें ये आयत है, इसमें ये मफहूम है, लोगों सुनो, और लोगों के दिमागों में डाला जाता हो कुरान की आयतें बहुत कम मिलती है, बहुत कम मिलती है। ऐसी कितनी मस्जिदें जहाँ पे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को बराह रास्त सुनाया जाता है कि ये हदीस है। कहते अरे कहाँ तुम ऐसी बातें समझा रहे हो, ये पढ़ने वाली चीजें नहीं। अच्छा कुरान पढ़ने नहीं पड़ता, हदीसें पढ़ने नहीं पड़ती, अब क्या पढ़नी पड़ेंगी? किससे कहानी किताब उठाओ
जुमा का भी दिन रहा तब भी आधा घंटा पढ़ लेते हैं खतीब साहब, उन्होंने क्या पढ़े उनको नहीं मालूम, लोगों ने क्या सुने उनको नहीं मालूम, सब के सब 80%, जहां तक मैं जानता हूं, अल्लाह वैसा जानता, गलती हो सकती है, 80% लोग जुमा में सोते रहते हैं। क्यों, क्या पढ़ रहे क्या पता। जब अरबी पढ़ी जाती है तो कहते कि ये खुतबा है। अच्छा ये खुतबा है तो समझ में नहीं आ रहा। अरबी जुबान में खुतबा कहते हैं कम्युनिकेट करने को, खिताब कहते हैं समझाने को, मालूमात के ट्रांसफर करने को। जब हम मालूमात को ट्रांसफर कर रहे हैं, ये तो अरबी है और हम अजमी खुद पढ़ने वाला नहीं। यानी पूरे दीनी मामला, पूरी मस्जिदें अल्लाह के दीन को समझाने से खाली होती जा रही है। क्यों, अगर ये समझा दिया गया तो अवाम होशियार हो जाएगी, अवाम चालाक हो जाएगी और हमारे पीछे नहीं चलने वाली, हमारे हाथों में नहीं आने वाली, हमारे खिलाफ खड़ी। ये डर है सिर्फ। जबकि अल्हम्दुलिल्लाह जो दीन एक बाहर को अच्छा इंसान बना सकता, मतलब एक गधे पने को इंसानियत में तब्दील कर सकता है, वही दीन उलमा की इज्जत करने को भी सिखाता है, वही दीन बड़ों की इज्जत करने को भी सिखाता है। अगर अवाम को दीन का इल्म दिया जाए तो ये क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये क्यों उम्मीद लगा रहे कि अवाम तुम्हारे खिलाफ जाएगी? नहीं भी जा सकती है, तुम्हारी इज्जत और ज्यादा करेगी अगर तुम सही इल्म दोगे, सही कुरान का इल्म दोगे, सही अहादीस रसूल का इल्म दोगे तो अवाम तुम्हारी और ज्यादा इज्जत करेगी, और ज्यादा इज्जत करेगी। क्योंकि एक नहीं दो नहीं कई अहादीस है। मिसाल के तौर पर एक हदीस आपके आगे सुना रहा हूँ, जिससे ये इस्तदलाल करता हूँ मैं कि देखो अल्लाह के दीन का इल्म आता है तो बुजुर्गों की इज्जत कैसे बढ़ जाती है। आप मसलन एक बार बैठे हुए हैं, सारे सहाबा, बड़े बड़े जय्यद सहाबा बैठे हुए हैं, उसमें एक बच्चा भी है। आप सर पूछते हैं क्या है मेरे सहाबा, क्या तुम्हें पता है वो कौन सा पेड़ है जिसके पत्ते झड़ते नहीं? सहाबा परेशान हो गए, किसी के जहन में आ रहा, किसी के जहन में नहीं आ रहा। और वो बच्चे कहते हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी है, वो उम्र बहुत छोटी थी, तो कहते हैं मुझे इसका जवाब मालूम था, मगर मैं देख रहा हूँ कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जय्यद बड़े बड़े सहाबा सब के सब खामोश है, मुझे मुनासिब नहीं लगा कि जवाब जानते हुए भी मैं जवाब दूं। ये क्या सिखा रहा है? ये तो बड़ों की इज्जत सिखा रहा है, जानते बुझते हुए भी जवाब नहीं दे। फिर आप जवाब देते हैं तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर बाजू अपने साथी को या गालिबन अपने वालिद साहब कहते, देखो मैं इसका जवाब जानता था पर आपकी इज्जत करते हुए जवाब नहीं दिया। ये क्या सिखा रहा है? तो बड़ों की इज्जत ही तो सिखा रहा है। तो ये अवाम से उम्मीद क्यों रखी जा रही है कि कुरान अगर इन्हें समझ में आ गया, अहादीस की किताबें अगर इन्हें समझ में आ गई तो ये उलमा के खिलाफ बगावत कहे न कर दे। अरे अल्लाह, ये तो ऐसा ही हुआ कि हिंदू मजहब कहते बहुत पुराना है, ठीक है, कोई हद नहीं, ये कई सालों से चल इसलिए रहा है क्योंकि इसको सबसे पहले बांटने का सिस्टम किया गया। गौर कीजिए, हिंदू मजहब के इस नुक्ते पर गौर कीजिए और इसका मौजना इस्लाम से कीजिए। आप सबसे पहले हिंदू धर्म को बांटने का सिस्टम किया गया और कहा कि हिंदू मजहब में एक जैसे इंसान नहीं है, 4 तरीके के इंसान है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्रह्मा वो है, ब्राह्मण वो है जो ब्रह्मा के सर से पैदा हुए, ब्राह्मण। क्षत्रिय वो है जो ब्रह्मा यानी जिसने ब्रह्मांड की सृष्टि की पैदा किया, उसके हाथों से पैदा हुए। वैश्य ये वो है जो ब्रह्मा के पेट से पैदा हुए। शूद्र वो है जो ब्रह्मा के पैर से पैदा हुए। ब्राह्मण ये जो जात है ये ब्रह्मा के सर से पैदा हुई है। सर की हमेशा इज्जत होती है, इसलिए कभी कामकाज नहीं करती है। ये हमेशा कभी भी बड़े बड़े सीट, बड़े बड़े पोस्ट, बड़े बड़े डेजिग्नेशन पर होगी। ये कभी कामकाज नहीं करेगी, काम करवा के लेगी। ये सब मैनेजर्स होंगे, जनरल मैनेजर्स होंगे, डायरेक्टर्स होंगे। वैश्य ये वो है जो ब्रह्मा के ब्राह्मण। क्षत्रिय वो है जो ब्रह्मा के हाथ से पैदा हुए। ये हमेशा ब्राह्मण की हिफाजत करेंगे। देखो ना कंसेप्ट कैसा है, ब्राह्मण की हिफाजत करेंगे। ये क्षत्रिय यानी फौजी लोग हैं, जितने भी फौज में लोग मिलेंगे अक्सर इस जात के मिलेंगे। इनका काम हिफाजत करना है, देखभाल करना है। और वैश्य वो है जो ब्रह्मा के पेट से पैदा हुए, पेट से रिलेटेड किसान, कामकाज करना, लेबर, इस तरह के जो कामकाज होते हैं जो घरों में
डेवलपमेंट लाने के लिए, घरों के कामकाज के लिए जो आता है, ये सब वैश्य है, ये भी ब्राह्मण की खिदमत करेंगे। आजा की खिदमत किसकी हो रही है? और जो शूद्र होंगे, जो ब्रह्मा के पैसे पैदा हुए, इनका काम है गटर की नालियां साफ करना, ड्रेनेज के नालियां साफ करना। सबसे निचली जात बोले तो यही है जो सबसे निचले काम करेंगी। सबसे पहले ये काम किया उन्होंने, बांट दिया तो कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कुछ भी टेंशन लेने नहीं। जिसको जो काम है वो समझ में आ गया, सब आके ब्राह्मण की खिदमत करेंगे। अब उनको हुकूमत करना आसान हो गया। कितना हुकूमत करना। इसके साथ ही साथ उन्होंने कुछ किताबें भी लिखी, ब्राह्मणों ने कुछ खास किताबें भी लिखी, जिसमें धर्म के रीत और रिवाज उसमें नकल किए, और कहा कि अगर कोई गलती से कोई शूद्र कोई किताब, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, अगर इनको सुन ले, ये चार मशहूर किताबें, अगर सुन ले तो उसके कान में शीशे को पिघला कर डाल दिया जाएगा ताकि वो कभी न सुने। क्यों ऐसा किया? उनको मालूम है कि इन किताबों में ऐसा कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। देखिए कितने चालाकी, इसमें इन किताबों ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अगर उनको ये किताबों का इल्म हो गया तो ये हमारे इस निजाम के, इस सिस्टम के खिलाफ खड़े हो जाएंगे और बहुत बड़ा इनकलाब आ जाएगा। मेरा सवाल इस निचोड़ को पेश करने के बाद ये है, क्या इस उम्मत मोहम्मदिया को भी, या इस उम्मत मोहम्मदिया के सरबराहों को भी इसी बात का खौफ है कि उम्मत इनके खिलाफ खड़ी हो जाएगी? इसी वजह से उम्मत को सबसे पहले बांट दिया। सबसे पहला काम क्या किया? उम्मत मोहम्मद को बांट दिया और कहा कि तुम इतने फिरकों में हो, हर फिरका हक है। ये कौन सी बात होगी? अगर हर फिरका हक है तो जन्नत में कौन जाएगा? फिर सब लोग जन्नत में जाएंगे, फिर बचे क्यों? जब सबके सब जन्नती है तो एक जन्नती बन के रहो। जन्नत तो एक है ना, जन्नत तो एक है। बांट दिया। बांट देने का फायदा ये होता है कि कोई आवाज नहीं उठाता। लेबर से ऐसा किया जाता है ना, लेबर यूनियन बनती इसलिए है कि उनके मालिका उन्हें बांटते हैं सबसे पहले। तो उम्मत मोहम्मद के अंदर भी पहले बंटवारा कर दिया गया, तुम फला जमात के, तुम फला फिरके के, तुम फला के मानने वाले बट गए। अब कहा कुरान और हदीस मत पढ़ना, इसके बाद की सारी किताबें पढ़ना। कसम खुदा की, अल्लाह कसम खा के कह रहा हूँ, अपने अपने घरों को उठा कर देखो, 10 साल पुरानी किताब मिलेगी, 15 साल पुरानी किताब मिलेगी, बहुत होगा तो 100 साल पुरानी किताब मिलेगी। कसम खुदा की, ये किताब कुरान मजीद नहीं मिलेगी जिसका तर्जुमा होगा, अक्सर घरों में नहीं मिलेगी। और सल्लल्लाहु की अहादीस की ओरिजिनल किताबें कभी नहीं मिलेंगी। आलिम भी, अल्लाह माफ करे मैं किसी पर तनकीद नहीं कर रहा हूँ, आलिमों के घरों में मैंने जाकर देखा हदीस की किताबें मौजूद नहीं है। बाकी सब हाँ छोटी मोटी किताब जो 10 साल 15 साल पहले लिखी है उसमें हदीस है मौजूद है, तो कहते हैं ये हदीस किताब है। एक साहब के घर से गया, मैंने कहा मौलाना इतनी बड़ी बड़ी लाइब्रेरी है, कम से कम 150 किताबें हैं, सब इतनी छोटी किताब, ये हदीस की किताब मुझे नजर नहीं आ रही। कहा ये भी हदीस ही है, ये भी हदीस किताब है। मैंने कहा मौलाना ये हदीस की किताब थोड़ी है, ये उसकी तखरीज है। क्या ये तखरीज मतलब रेफरेंस है, उसमें रेफरेंस, ओरिजिनल तो अलग है। तो कहा नहीं वो मैंने मंगाया नहीं क्योंकि वो जल्दी समझ में नहीं आती। मैंने कहा आलिम साहब अगर आप कह दे कि हदीस किताबें समझ में नहीं आती तो हमारे से अवाम तो सिर्फ गए गुजरे हो गए। तो क्या कहा, सबसे पहले कुरान और हदीस को रोका गया। अब सिर्फ रोकने से काम नहीं चलता था, इसके बदल भी कुछ देना पड़ता है ना। इसके बदल क्या दिया? किस्से और कहानियां। कहा गाँव से पाक तो ऐसे है कि तुम्हारी कब्रों में भी आकर तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हारे सवाल का जवाब देंगे। अब अवाम तो अवाम पूछा वो कैसे? पाक एक मुरीद था, उनका एक मुरीद था, सिर्फ साल में एक बार 11वीं करता था, नमाज रोजे कुछ नहीं पता उसको, कोई हर्ज नहीं है। मगर जब मर गया और मुनकिर ने सवाल किया कि मन रब्बू का तेरा रब कौन है, माँ दीनों का तेरा दीन क्या है, मन नबियों के तेरा नबी कौन है, तो हर सवाल पर कहता था या गौस अल मदद, या गौस अल मदद। तीसरी बार जब उसने कहा या गौस अल मदद, तो गाँव से पाक तूफान की तरह उन फरिश्तों के सामने आकर खड़े हो गए और दोनों फरिश्तों को एक हाथ एक फरिश्ते में दूसरे फरिश्ते को उठाया और ले जमीन में पटकने लगे। मन रब्बू का, माँ दीनों का, मन रब्बू का। मेरे मुरीद से सवाल करते हो? फरिश्ते डर गए, लपलपा गए और कहा कि अरे सरदार औलिया हमें तो इस बात की नहीं था कि आपका मुरीद है और हमारी क्या जरूरत थी इससे सवाल करे, और इसे डर कर भाग गए। अब ये किस्सा और कहानी जब दलील बनकर अवाम के आगे रहेगी तो कहेंगे कुरान क्यों पढ़ेंगे, हदीस क्यों पढ़ेंगे, जरूरत ही नहीं है। अब कहते हैं
बाबा का दामन पकड़ लो, आखिर में अल्लाह भी हिसाब किताब नहीं से डर जाएगा। नो बिल्ला, ऐसी ही वाकयात, ऐसी ही बातें अवाम के ज़हनों में डाली जाती है कि बाबा का दामन पकड़ लो, मुरीद साहब का, मुर्शिद साहब का दामन पकड़ लो, हिसाब किताब की जरूरत नहीं है। जब भी अल्लाह सवाल करे, ये तुम जानते थे, रेफरेंस कर देने, मैं तो फला का मानने वाला हूँ, मैं तो फला के झंडे तले हूँ। अल्लाह कहता है फला, अरे माफ करो, मालूम नहीं था, चलो जन्नत, वो जन्नत में तुम भी जन्नत ही। अब जब ये सब कुछ बातें होंगी तो इस्लाम में कुरान की क्या जरूरत, हदीसों की क्या जरूरत, सिवाय ख्वाहिशात की और क्या रहेगी। आज हर मुसलमान नहीं कहता हर मुसलमान जन्नत में जाएगा। मैं कहता हूँ क्या ये जुमला सही है? फिर आका प्यार आका वसल्लम का की जुबान निकले हुए इस जुमले का क्या मतलब है? आप वसल्लम कहते हैं हर मुसलमान जन्नत में जाएगा जिसने शिर्क न किया हो। ये हदीस के अल्फाज है, आगे का क्यों कट करके उड़ा दिए? अवाम के जहन में ये लफ्ज है ही नहीं, हर मुसलमान जन्नत में जाएगा जिसने शिर्क न किया हो। यहाँ तक कि प्यारे आका वसल्लम अपनी सिफात कुबरा के किताबों से बयान करते हुए कहते हैं कि मेरी सिफारिश हर उस मुसलमान के लिए है, हर उस मुसलमान के लिए जिसने शिर्क न किया। ये बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, इब्न माजा, हर हदीस की किताब में आपको एक दो जरूर हदीसें मिलेंगी जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान निकले ऐसे अल्फाज है, मेरी सिफारिश हर उस मुसलमान के लिए जो शिर्क न किया हो। मालूम है कि शिर्क बहुत बड़ी चीज है और आज अक्सर मुसलमान शिर्क में मुलविस है। बोले क्या हुआ? बोले बच्ची को लग गए, जिसकी वजह से बोले वो तिरस्माती मोती डाल दिए। बोले कौन बोले? तो डॉक्टर ने बोला। कौन बोले? तो बोले मौलाना ने बोले। और ये हाथ में क्या है? बोले वो बच्ची बार बिस्तर की उतरी। बोले इसलिए मैं कहता हूँ तुम्हारा ईमान और अकीदा इस काले तागे पर आया कि नहीं आया कि जब से मैं ये पहन रहा हूँ या पहना रहा हूँ बच्ची डर नहीं रही है, मैं डर के नहीं उठ रहा हूँ, बुरे ख्वाब बंद हो गए। अकीदा किस पर आया? इन चीजों पर आया। तो इसी तरह से आप कहते हैं इब्न माजा और तिरमिज़ी की हदीस है, मन अल्लाह का तमीमतन फक़द अशरक। आप की जुबान निकले अल्फाज है, इन अल्फाज की कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? अमानियत यानी ख्वाहिशात हमारे पास है, लॉजिक हमारे पास है, अटकल पत्तियों हमारे पास है। आप तो क्या कहते हैं? मन अल्लाह के तमीमतन फक़द अशरक, जिसने तावीज गंदा वगैरह किया, करे और छल्ले पहना, फक़द अशरक, यकीनन उसने शिर्क किया। इससे बढ़कर और क्या हदीस हो सकती है? सही हदीस, तिरमिज़ी और इब्न माजा की सही सनद वाली हदीस। फिर भी ये हदीस मुसलमानों के पास नहीं है। अगर की बसा औकत ऐसा होता कि जब इस हदीस हम सुनाते तो ऐसी है कि हदीस ताज़ी से अवाम पूछती है, हम कहते हैं आपकी गलती नहीं है, आपको तो रखा ही गया है इस तरह कि तुम इन्हें न समझो न पढ़ो। तो इस तरह कुरान और हदीस से जब अवाम को दूर किया जाता और सिर्फ दूर करने से काम नहीं बनता तो इनके आगे किस्से और कहानियां दलील के तौर पर रख दी जाती है। वही किस्से और कहानियां इनका दीन बन जाती है और इसी दीन को वो लेकर मर जाते हैं और ये समझते हैं हम आखिरत में कामयाब हो जाएंगे, हम फला का दामन पकड़ लेंगे, हम फला के झंडे तले जमा हो जाएंगे, इस तरह हमारी आखिरत में कामयाब हो जाएंगे। जबकि एक नहीं दो कुरान की कईयों आयतें हैं इसमें अल्लाह ताला कहता है कि तुम आज मेरे पास आए फुआदा यानी इंडिविजुअल, फर्दन फर्दन। कुरान की आयत की इस आयत से मालूम हुआ हर इंसान अल्लाह के आगे अकेला आकर खड़ा होने वाला है, उसके साथ कोई नहीं रहेगा। वो ये नहीं बोलेगा कि अल्लाह फला की वजह से फला का मेरे सवाल का जवाब फला देगा, ये नहीं है। हर एक आदमी अकेला आकर खड़ा होगा, अल्लाह के आगे हिसाब किताब देगा। फिर तोहा तो 20 उठाओ आप आयतों में 123, 124, 125, 126 इस 4 आयतें पढ़कर देखो, इसमें अल्लाह ताला यही बात करता है कि मैं हिसाब किताब अकेले लूंगा, एक एक को बुलाकर लूंगा। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, हम तो फला का दामन पकड़ लेंगे। अरे भाई मेरे, वो तो हशर का मैदान, वो मैदान है जिस वक्त सारे इंसान नंगे होंगे। अब बता किसका दामन पकड़ेंगे? जब कुछ कपड़ा ही नहीं पहनेंगे तो दामन किसका पकड़ेंगे? हर इंसान नफ्सा नफ्से का आलम होगा, हर इंसान को इस बात की फिक्र होगी कि मेरे साथ क्या होगा। यहाँ तक के हदीस में आता हर नबी तक ये कह रहा होगा नफ्सी नफ्सी, अल्लाह मेरे साथ क्या होगा, मेरा नबियों की ये बात है। यहाँ तक के आखिरी बात बयान करके अपनी बात खत्म करता हूँ। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब लोग जाएंगे इतनी चिलचिलाती धूप होगी कि सूरज बिल्कुल सवा नेज़े पर होगा,
जमीन तांबे की होगी, शिद्दत से गर्मी होगी, कोई टखनों तक भीगा होगा अपने पसीने में, कोई घुटनों तक, किसी किसी की तो गर्दन तक पसीना होगा, उसका जैसे अमाल होंगे उतना पसीना होगा। सारी उम्मत परेशान होकर हर नबी के पास जाएगी कि अल्लाह कहेंगे सिफारिश करो ताकि मामला जल्दी शुरू हो। हिसाब से अभी शुरू नहीं हुआ, शुरू करो बस कैसे सिफारिश करो। हर नबी कहेंगे मेरी ये हिम्मत नहीं है। हर नबी डर रहा होगा कि मुझे तो पहला एक गलती का एहसास है कि अल्लाह उस एक गलती की वजह से मुझे पकड़ ले और कहे सजा दे दे। ये नबियों का हाल है। अब नबियों का ये हाल है कि अपनी एक गलती की वजह से कर रहे। ये तो अवाम है जिसने पूरी जिंदगी कभी नमाजों का न ध्यान दिया, न कभी रोजों पे ध्यान दिया, न कभी जिक्र अज़कार पे ध्यान दिया। हाँ, साल में एक बार एक आध रात में जाग लेते हैं, जितनी नमाजें छूटे सभी कदा एक साथ कर लेते हैं। ये कौन सा सिस्टम है? कर लिया। इधर जब सारी उम्मत आप सल्लम के पास आती है, कहती है कि अल्लाह के रसूल आप जरा हमारे सिफारिश करो, तो आप सल्लम खुश होकर, हदीस में कहते हैं, इस हदीस को बयान करते हुए खुश होकर कहते हैं हाँ उस वक्त मैं उठूंगा क्योंकि इसका हकदार मैं ही हूँ। क्या कहते हैं? शिफा आते कुबरा, सबसे बड़ी सिफारिश। हालांकि बहुत सारी चीजें सिफारिश करने वाली है, अल्लाह जिसको इजाजत दे, जिसके ताल्लुक से अल्लाह पसंद करे, बहुत सारी चीजें आपका सल्लम की भी सिफारिश होने वाली। ये शिफाते कुबरा है, बड़ी सिफारिश है। आप सल्लम उठेंगे और कहेंगे हाँ मैं सिफारिश करूंगा। अब बताओ, नबी सरदारुल अंबिया सिफारिश कर रहे हैं, तो आपके मेरे हिसाब से कैसा सिफारिश करना? अब अवाम के जहन में अवलिया अल्लाह सिफारिश करते हैं तो इसका जहर कैसा दिया जाता? जब एक आम बंदा आता है, अल्लाह का हाँ क्या है, नमाज पढ़े गया, तो फौरन बोलता मैं तो फलां का मुरीद हूँ, फौरन वली आ जाता है मैं तो मेरा मुरीद है, छोड़ दे, माफ कर दे, जन्नत में डाल दे। ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा ही जहन दिया जाता है ना। आप किसी आम इंसान को पूछकर देख लो, मैं नहीं कह रहा, हकीकत है। मुर्शद साहब, वली साहब कहते हैं अल्लाह ये तो मेरा मुरीद है, क्या पूछ रहे हैं? मेरे से पूछ, इन्हें डाल दे जन्नत में, मैं तो जन्नती हुई है ना, इनको डाल दे जन्नत में। इतना आसान है सिफारिश। तो पूछो, आप सल्लम कहते हैं सही बुखारी की 2-3 पन्नों पर मुश्तमिल हदीस, सही मुस्लिम की, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, इब्ने माजा, नसई, मुवत्ता इमाम मालिक, मुस्नद अहमद, हर एक में हदीस आई हुई है। आप सल्लम कहते हैं मैं इसका हकदार हूँ, मैं खड़ा हूँगा अल्लाह के आगे सिजदे में गिर जाऊंगा, खूब अल्लाह की तारीफ करूंगा, खूब अल्लाह की तारीफ करूंगा, खूब अल्लाह की हम्द सना बयान करूंगा। और आप कहते हैं उस वक्त अल्लाह ताला इतने गुस्से में होगा, इतने गुस्से में होगा तो नहीं इससे पहले कभी था, न इससे बाद कभी होगा। ये आखिरत का मैदान ऐसा है, हश्र का मैदान ऐसा है। मैं अल्लाह के आगे सिजदे में गिरूंगा, खूब अल्लाह की तारीफ करूंगा, यहाँ तक कि अल्लाह का गुस्सा थोड़ा ठंडा होगा। हदीस का अल्फाज है, थोड़ा ठंडा होगा। अल्लाह कहेगा ऐ मोहम्मद उठा अपना सर, तुम्हारी सुनी जाएंगी, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। आप सल्लम सिफारिश करें, यानी नबी सरदारुल अंबिया को सिफारिश करने के लिए कई वक्फे तक अल्लाह के सिद्धा रेज होना पड़ता, खूब रोना पड़ता, खूब तारीफें करनी पड़ती, तब जाके अल्लाह का गुस्सा ठंडा होता और कहता है नबी कहो क्या बोलता है। फिर हमारे जहनों में ये अकीदा, ये सोच क्यों डाल दी गई कि अल्लाह बस एक कोई नौजुबिल्ला कोई खिलाना है तो कोई आया का अल्लाह क्या कर रहा, मेरा मुरीद डाल दे जन्नत में। जब नबी को सीधा 3 बार आप सल्लम सिजदे में जाएंगे, 3 बार आप सल्लम की सिफारिश कबूल होगी और कुछ लोग जन्नत में डाल दिए। और हदीस में आता कि वो लोग होंगे जो अपने गुनाहों की वजह से, अपने गुनाहों की वजह से जहन्नम अपनी गुनाह अपनी सजा भुगत चुके होंगे, अकीदा दुरुस्त होने की वजह से, अकीदा तौहीद होने की वजह से, शिर्क से जिंदगी में बचने की वजह से मेरी सिफारिश उनके तरफ से कबूल होगी और उन्हें जहन्नम से निकाल कर आब हयात से नहला कर फिर से उस कोपल और पौधे की तरह इन्हें तैयार करके फिर से जन्नत में डाला जाएगा। जिसके तरफ से अल्लाह की सिफारिश कबूल होगी वो शिर्क पर मरान होगा, सिर्फ इसलिए जहन्नम में जाएगा क्योंकि उसके गुनाह होंगे, उन गुनाह की सजा भुगतेगा। अब आप बताओ, न यहाँ अक़ीदा तौहीद पर कोई ख्याल है, न शिर्क से बचने के लिए कोई कोशिश है, और न ही सही ईमान किसको कहते हैं वो पता है, न ही दीन के सही मसाइल पता है, न नमाजों का जखीरा है, न अल्लाह के जिक्र का कोई जखीरा है, न रोजों का कोई जखीरा है, कुछ नहीं, उन्हें गुनाहों पे गुनाही, रिश्वत भी दी जा रही है, धोखाधड़ी भी दी जा रही है, इधर का माल उधर, उधर का माल इधर भी किया जा रहा। फिर ये उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमें जन्नत में डालेगा। यही अमानियत यानी यही ख्वाहिशात यहूदियों में भी थी। अब यही अटकल पक्षी और वाकयात और किस्से और कहानी उनके लिए दलीलें थी, उम्मत मोहम्मदिया में भी यही आ गई।
कोशिश इस बात की की जाए कि बिलखुसूस उलमा हजरात, फुजला हजरात, मुफ्तियान कराम इस दीन को ज्यों का तू उम्मत तक पहुंचाने की कोशिश करे। इस डर को अपने दिल से निकाल दे कि ये उम्मत इनके खिलाफ बगावत खड़ी करेगी। और उम्मत का ये काम है कि दीन के हर इल्म को जो इनसे हो सकता, जिसका जैसा लेवल है वैसा कुरान को समझे, अहादीस को समझे, उसके बाद की जो साहबा की जिंदगी को समझे, ताबईन, तबे ताबईन, अइम्मा कराम सबकी जिंदगी को समझे, दीन के इल्म को हासिल करे, इंशाअल्लाह हर कोई आखिरत में कामयाब होने वाला बनेगा। अल्लाह दुआ करता हूं अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे दीन को समझने, इस पर अमल करने की। अल्लाह हम सबको बचाए यहूदियों के रईस पर चलने की। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।